So dear children, once again good afternoon. We are continuing the lesson Relief Features of India, and we are studying about the Himalayas. In yesterday class, we studied about the parallel ranges of Himalayas, the Himadri, the Himachal and the Shivalik. We studied in detail about the Yes, ma'am. three parallel ranges of Himalayas. Today you first write a question. What do you mean by relief? What do you mean by relief? R-E-E-F. What do you mean by relief? Write this question. Relief are those features which are related to landscape of those area. Write again. The difference of height Relief on the are Earth's surface. So start writing. The difference of height on the Earth's surface The difference of height on the Earth's surface is known as relief. For example, Himalaya. For example, mountains, plateaus, plains, valleys, gorges, etc. Relief is the difference of height on the Earth's surface. For example, mountains, plateaus, plains, gorges, valleys, etc. Gorges, G-O-R-G-E-S. Gorges, valleys, etc. V-A-L-L-E-Y-S. Valleys. Now you tell me, which mountain range of Himalayas have hill stations, have beautiful hill stations and lakes? Say again. Himachal. Himachal, the middle one. The middle portion has very beautiful hill stations and lakes. See here. Ganga River, 8 minutes. Can you name some of the lakes? Sambar Lake, Loktak Lake. No, these examples are in drainage. You have to tell the names of lakes in the Himalayas. Himalayas. Here, see here. Here are the names of some. Mansarovar Lake. हाँ, very good. और बोलो वुलर लेक ना, ये सब हिमालयन लेक के अंदर आ जाएंगे. तो यहाँ पे तुम देख रहे हो लोकेशन ऑफ सम हिल स्टेशंस आर. लेक इन नेपाल. हाँ, नक्की लेक है, नैनीताल लेक है, ये सब है. तो ये हिमालयन लेक्स हैं. और लोकेशन ऑफ मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, these are the famous hill stations located in middle range of the Himalayas, which is also known as Rupkund. Himachal, which is also known as Himachal. Okay. हाँ, तो कौन से पेज नंबर में हो बोलो? 11. Page number 11. And you are revising the second range of Himalayas, that is Himachal or Lesser Himalayas. They are composed of highly compressed and altered rock. Compressed means there is lot of pressures from both sides. Altered rock means their original characteristics have changed. The altitude varies between 3,700 and 4,500 meters. With average widths of 50 किलोमीटर. ये सब किस में लिखने के लिए बताए थे तुमको?
कि जब हिमाचल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हिमालय हाँ तो उसमें ये सारे लिखेंगे, और इसमें इस रेंज का नाम भी लिखेंगे, द पीर पंजाल रेंज, द महाभारत रेंज, ठीक है ना, ये सब लिखोगे ना, पीर पंजाल रेंज और महाभारत रेंज forms the longest and the most important range. The Dhauladhar and the Mahabharat ranges are also prominent ones. This range consists of famous valleys of Kashmir, Kangra, Kulu Valley in Himachal Pradesh. है ना, वैली किसको कहते हैं? दो माउंटेन के बीच में जो लो लाइंग लैंड होता है उसको हम वैली कहते हैं. So these are all about the लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयास. इस डिवीजन को क्या कहते हैं बोलो? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयास. मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते हुए 3 पैरेलल रेंजेस हैं, द हिमाद्री, द हिमाचल एंड द शिवालिक, जिसके बारे में तुम कल डिटेल में पढ़ चुके थे और थोड़ा बहुत अभी रिवीजन भी हो गया. और शिवालिक के बारे में क्या क्या कल बताए थे मैम? ये हिमाचल के साउथ में है. हाँ ठीक. और 10 to 50 किलोमीटर इसका हाँ हाँ मैम. 900 मीटर. हाँ 900 to 1100 मीटर्स इसकी एवरेज हाइट है, ठीक है. विड्थ कितनी है? 10 to 50 किलोमीटर्स. और ये लूज मटेरियल से बना हुआ है, इसलिए ये अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन इसके लिए बहुत ही प्रोन एरिया है. मतलब इन सारी चीजों का इस पे बहुत इफेक्ट होता है, सॉइल इरोजन का, लैंडस्लाइड का या अर्थक्वेक का, ठीक है. अब आज का जो मेन टॉपिक है हम लोग का यहाँ से शुरू होता है. बिसाइड्स द लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स, द हिमालयाज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर. Write about the regional classification of Himalayas. Start writing a question. Write about the regional classification of Himalayas from west to east. Write the regional classification of Himalayas from west to east. Did you write? Yes, ma'am. Ma'am, repeat once again. Write the regional classification of Himalayas. Regional, R-E-G-I-O-N-A-L. N-A-L. Regional. Write the regional classification of Himalayas from west to east. Huh. Yesterday, now listen, stop. Yesterday you studied about the longitudinal division from north to south, and now you are studying about the regional classification of Himalayas from west to east. And these classification are on the basis of river valleys. See here, these divisions have been demarcated by river valleys. इसका मतलब रिवर जहाँ से हिमालय को क्रॉस कर रहे हैं वहां से एक एक अलग अलग पार्ट बन जाता है, हिमालय के एक एक रीजन बन जाते हैं. इसी को तुम्हें हम मैप से दिखाकर बताते हैं, है ना. आर यू सीइंग दिस? यस मैम. Yes, ma'am. हाँ, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना. अब इसी मैप को देखते हुए तुमको हम इसका रीजनल क्लासिफिकेशन बता रहे हैं जो तुम्हें लिखना है, ठीक है. कल के क्लास में क्या पढ़े थे? ये पढ़े थे, देखो ये हिमाद्री, फिर हिमाचल और लास्ट में क्या है? शिवालिक. ये 3 पैरेलल रेंज पढ़े थे कल. और शिवालिक के बारे में एक और बात ध्यान रखने की है, वो क्या है कि शिवालिक यहाँ से देखो उत्तराखंड से कंप्लीटली इसमें नेपाल के अंदर हो जाता है, ठीक है ना. नेपाल के अंदर है हिमालय कंप्लीटली. यहाँ पे कभी भी हिमालय का रेंज ड्रॉ मत करना. यूपी के और बिहार के नॉर्दर्न बॉर्डर पे यहाँ हिमालय नहीं है, है ना. ये कंप्लीट किस में चला जाता है? नेपाल के अंदर शिवालिक. और नेपाल से होते हुए ये सिक्किम, भूटान और फिर अरुणाचल प्रदेश को होता है, ठीक है ना. तो मैप ड्रॉ करते समय बच्चे जो गलती करते हैं वो ये है कि शिवालिक ड्रॉ करते हुए इसका लाइन यहाँ तक ले आते हैं नेपाल के साउथ में, तो ये बिहार यूपी में चला आया.
तो वो completely wrong हो जाता है। उस पर उसका ध्यान रखना कि शिवालिक lies completely in Nepal. Understood? Now come to the regional classification of Himalayas from west to east, and this has been done on the basis of river valleys. River valleys मतलब river जिस रास्ते से होके बह रहे हैं वो एक ब्रॉड वैली बनाते हैं, एक गैप बनाते हैं, तो वही उसका एक पार्टीशन हुआ, डिवीजन हुआ हिमालय का, है ना। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं रिवर इंडस से। The Himalayas lying between river Indus and river Satluj is known as Punjab Himalayas. पंजाब हिमालय। इंडस रिवर का लोकेशन पहले भी पढ़े हो तुम, तो इंडस रिवर और ये ब्लू लाइन से क्या दिखाया हुआ है, रिवर्स, तो वाटर रिवर। हाँ, और ये कौन सा हुआ, रिवर सतलज। तो इन दोनों के बीच में हिमालय का जो पोर्शन है वो उसको कहते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। इसे कहीं कश्मीर हिमालयाज या हिमाचल हिमालयाज भी कहते हैं, ठीक है। इंडिया में पॉपुलरली इसको क्या कहते हैं, पंजाब हिमालयाज कहते हैं। और पंजाब से मतलब होता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स। लैंड ऑफ 5 रिवर्स इज नोन एज पंजाब। यहाँ पे और भी कई सारे रिवर्स हैं इसलिए। तो ये देख लिए पहला, ये फर्स्ट डिवीजन ये हो गया, इसका नाम रखा गया है पंजाब हिमालय। और दूसरा डिवीजन यहाँ से शुरू होता है, रिवर सतलज टू रिवर काली। काली। See this river on the western margin of नेपाल। नेपाल इंडिया का जो बॉर्डर है, यहाँ पे कौन सी रिवर है वेस्टर्न मार्जिन पे नेपाल के, काली। काली रिवर। काली। इसी को शारदा रिवर भी कहते हैं। तो हिमालयन रीजन between river Satluj to river Kali is known as Kumaon Himalaya. What is the name of Kumaon? Kumaon is a district of Uttaraंचल। उत्तरांचल में कुमाऊं एक डिस्ट्रिक्ट है, उसी के नाम पे ये रखा गया है कुमाऊं हिमालयास। तो और यहाँ स्टेट कौन सा होगा, उत्तरांचल, ठीक है ना, उत्तराखंड कहते हैं जिसे। तो पहले पार्ट में कौन कौन से स्टेट आएंगे, कश्मीर आ जाएगा पूरा, है ना, कश्मीर, और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या आएगा, हिमाचल प्रदेश। पंजाब इसमें 2 स्टेट आएंगे, कश्मीर और पंजाब और हरियाणा। नहीं, पंजाब हरियाणा बिल्कुल नहीं आएगा। पंजाब हरियाणा जम्मू एंड कश्मीर और आ जाता है, यहाँ हिमाचल प्रदेश। हाँ, तो पंजाब हरियाणा जो है ना वो गंगा प्लेन में आता है, ये जो गंगा बेसिन है ना उसमें नदन प्लेन के अंदर आता है। तो लेकिन नाम यहाँ पे पंजाब हिमालयाज रखा गया है हिमालय का। लेकिन मेन एरिया कौन है, वो कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरी बन गया है, और हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। वेरी गुड, ये मेनली ये पोर्शन है ना, और थोड़ा लद्दाख भी। तो फिर इसी को यहाँ जो सेकेंड पार्ट है वो हो गया कुमाऊं हिमालय। So what will you write about Kumaon Himalayas? The Kumaon Himalaya lies between rivers Satluj and river Kali. And Kali. शारदा। And the name of the state is Uttarakhand. Only? Right. Now the third part. The third part of Himalayas is known as Nepal Himalayas. Nepal Himalayas. Third part of Himalayas is known as Nepal Himalayas, which lie between river Kali to river Tista. Are you seeing this river? River Tista. River Tista passes through Sikkim, है ना, सिक्किम से ये क्रॉस करता है उधर नॉर्थ से आते हुए। ये भी एक पेरिनियल रिवर है जो हिमालय से आती है और आते हुए ये सिक्किम से क्रॉस करता है। तो सिक्किम में तिस्ता और यहाँ नेपाल के वेस्टर्न बॉर्डर में काली, इन दोनों रिवर के बीच में जो हिमालय है उसका क्या नाम है, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि नेपाल हिमालय ये कम्प्लीटली नेपाल के अंदर है, इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो नेपाल के अंदर है, इसलिए इसका नाम रखा गया है नेपाल हिमालय। यहाँ देख रहे हो तीनों रेंजेस हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक तीनों हैं। लेकिन रिवर से डिमार्केटेड रीजन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम काली टू तिस्ता। समझिए, हाँ। अब इससे भी आगे बढ़े, नंबर 4। तो फ्रॉम रिवर तिस्ता टू रिवर दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को ही क्या कहते हैं, दिहांग। तिस्ता से लेकर के, रिवर तिस्ता से लेके रिवर दिहांग तक जो हिमालय है उसको क्या कहते हैं, असम हिमालय। सो नंबर 4 इज Assam Himalayas. Assam Himalayas. So the regions covered in Assam Himalayas are completely Bhutan and the whole of Arunachal Pradesh.
ठीक है, भूटान और अरुणाचल प्रदेश है इस हिमालय के अंदर, लेकिन नाम क्या रखा गया है, असम हिमालय। ठीक है ना। और यहीं पे रिवर दिहांग है ना, इसका एक बहुत डीप गॉर्ज बनता है। समझ गए गॉर्ज क्या होता है, पहले भी बताए थे। गॉर्ज इज मैम between the two mountains river flow. हाँ, तो रिवर इज अ वेरी डीप, gorge is a very deep downward cutting done by river in U shape, है ना। रिवर अपने बेड को गहराई में काटते चली जाती है, दोनों तरफ से वर्टिकल वाल रहते हैं, किनारे कैसे रहते हैं, बिल्कुल यू शेप में रहते हैं, और नीचे गहराई तक रिवर कट जाती है, रिवर का बेड, तो इसको यू शेप कहते हैं, यू शेप वैली, या इसी को कहते हैं गॉर्ज। तो दिहांग रिवर जो है यहाँ अरुणाचल प्रदेश में इस जगह पे बहुत डीप गॉर्ज बनाती, गॉर्ज, ठीक है ना। तो मतलब रिवर का जो बेड है, जो उसका बॉटम है, वो अंदर की तरफ बहुत गहरा कटा हुआ रहता है और यू शेप की गहराई होती है। इसी गहरे पार्ट को क्या कहते हैं, गॉर्ज कहते हैं। गॉर्ज। गॉर्ज इज एन इरोजनल फीचर ऑफ रिवर, रिवर के इरोजन से गॉर्ज बनता है। तो दिहांग गॉर्ज यहाँ पे बहुत ही फेमस है। और दिहांग गॉर्ज के बाद हिमालय बिल्कुल ऐसे साउथवर्ड टर्न हो जाता है, देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तो हिमालय एक आर्क शेप में वेस्ट टू ईस्ट ऐसे फैला हुआ है, इन अ आर्क शेप। बट आफ्टर द दिहांग गॉर्ज व्हाट हैपेंस टू द माउंटेन टर्न्स अब्रप्टली साउथवर्ड, है ना, ये साउथ की तरफ इसका एक ब्रांच बढ़ जाता है आगे की तरफ। तो इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिमालय। तो हिमालय का ये एक अलग डिवीजन हो गया, ठीक है ना। यहाँ से रीजनल क्लासिफिकेशन में तुम लिखोगे कश्मीर हिमालयस नंबर 1, या पंजाब हिमालयस नंबर 2, कुमायूं हिमालयस नंबर 3, नेपाल हिमालयस नंबर 4, असम हिमालयस, है ना। तो ये रीजनल क्लासिफिकेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गया, फ्रॉम पंजाब हिमालयस टू असम हिमालयस। This is all about the regional classification of Himalayas from west to east. Now next paragraph. After Dihang Gorge, the Himalayan mountain turns southward, which is known as Purvanchal Hills. It is written Purvanchal Hills. In Purvanchal Hills, there are many ranges, and in southward direction, like Patkai Hills, Boom Hills, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, लुशाई हिल्स, इस तरह के बहुत सारे माउंटेन रेंजेस है, जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल हिल कहते हैं। वो सैंडस्टोन से बना हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात कि यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो फॉरेस्ट से बिल्कुल भरा हुआ है, ग्रीनरी से भरा हुआ है, फॉरेस्ट से बिल्कुल भरा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बार और हम लोग देख लें इस पैराग्राफ को। हाँ, यहाँ से देखो, अबाउट द पूर्वांचल हिल्स, दिस पैराग्राफ ऑन पेज 11, लास्ट पैराग्राफ। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयास बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज। द हिमालयास बेंड शार्पली to the south and spread along the eastern boundary of India. They are known as Purvanchal or Eastern Hills. हिंदी में पूर्वांचल कहते हैं और इसी को हम कह सकते हैं Eastern Hills, Eastern mountains. These hills running through the north eastern states are mostly composed of strong sandstones which are sedimentary rock. ठीक है ना, sedimentary rock का ही एग्जाम्पल है sandstone. So covered with dense forest, they mostly run as parallel ranges and valleys. Parallel ranges और valleys के फॉर्म में है। वैलीज बताए थे ना कि दो हाई माउंटेन के बीच में जो लो लाइंग लैंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, वैलीज कहते हैं। valleys. हाँ, द पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल comprise, हाँ, पूर्वांचल comprise Patkai Hills, Naga Hills, Manipur Hills and Mizo Hills. Now here 4 important hills are given: Patkai Hills, Naga Hills, Manipur Hills, Mizo Hills. When you will see the atlas, you will find some more names
When you will see the atlas of Purvanchal Hills, you will find some more names, right? Like Mizo, Music, Boom, Naga, Lushai, बहुत सारे नाम तुमको मिलेंगे. और यहाँ पे 4 important hills के नाम है. Patkai Hills, Naga Hills, Manipur Hills and Mizo Hills. So in today's class, you have studied 2 topics on Himalayas. Number 1, the regional classification from west to east, which is in 4 parts, and then you have studied about the Purvanchal Hills. Okay, so you have to write this answer and you have to learn also. So read this paragraph thoroughly.